آئیے ہمارا پہلے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار محمد جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی مقدس بارگاہ میں ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں ہم لوگ اور آپ تمام حضرات، آپ کا یہ مقدس اسٹیج بڑے بڑے اکابر علماء کرام شہداء اسلام سے بھرا پڑا ہے الحمدللہ، جس کی صدارت حضرت مولانا سراج احمد صاحب قبلہ فرما رہے ہیں اور سرپرستی حضور مفتی یوسف صاحب قبلہ اور حضرت علامہ بشیر قادری صاحب قبلہ اور دیگر علماء کرام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر خاص طور سے ان علماء کے صدقے میں اپنا خاص فضل فرمائے کہ آمین۔ حضرت مفتی رفیق صاحب قبلہ مدد العلی و نورانی اس سے علاقے کے الحمدللہ بڑے حسن و خوبی کے ساتھ پورے مضافات کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور آپ جس دیار میں رہتے ہیں الحمدللہ حضور نذیر ملت علی رحمت و رضوان، پھر کیا کہنا ہے، نور عرفان کی بارشیں ہو رہی ہیں ہر لمحہ ہر وقت ہر سمے الحمدللہ۔ جہاں اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہاں ایک لمحہ کے لیے بھی خالی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ میرے دوستوں اور سب سے بڑی بات ہے یہ پروگرام حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب قبلہ کی والدہ محترمہ مرحومہ مریم خاتون، جن کے نام برائے صاحب میلاد پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یقین جانیے دوستو بزرگوں، مرحومہ کی مغفرت کہیے گا کیوں کیسے؟ تو علماء حضرات یہاں بیٹھے ہیں کیونکہ ان کے دعاؤں کے اثرات کو اس قدر ہم سب پر بھاری ہے گرا ہے کہ ہم لے کر کے صحیح ڈھنگ سے چلنا چاہیں تو یہ بارے گرا نہیں پائے گا، لیکن نہیں، لیس الیتیم الذی قد مات والدہ، فرمایا ہے شاعر نے لیس الیتیم الذی قد مات والدہ بل الیتیم الیتیم العلم والادب۔ ارے یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہو، بلکہ یتیم وہ ہے جس نے علم و ادب حاصل نہیں کیا ہو۔ اللہ اکبر۔ مرحومہ نے بڑی محنت کی ہوگی، بڑی مشقتیں برداشت کی ہوگی، بڑی ایذائیں تکلیفیں اٹھائی ہوگی، اور اپنے لاڈلے حضرت علامہ عبدالرحیم صاحب کو علم و ادب کے بالکل علم و ادب کے گہوارے میں ڈال کر کے اور عالم دین بنا کر کے اپنے سر کا تاج انہوں نے اوڑھ لیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آیا ہے من قرأ القرآن وعمل بما فيه علم سماج نہ ہو طالب یوم القیامت ذوہ شب، جس نے قرآن پڑھا عمل کیا قیامت کے میدان میں اس کے ماں باپ کے سر پر ایسا تاج رکھا جائے گا جس تاج کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی پھیل ہو جائے گی۔ تو ان کی مغفرت کیوں نہیں ہو یارو، ان کی بخشش کیوں نہیں ہو، جن کے لیے کہا گیا ہے ان العلم یبقى لا يزال وان المال يفنى عن قریب۔ یہ آیا ہے ان العلم یبقى لا يزال۔ ارے علم کی شکتی تو یہ ہے کہ یہ باقی رہنے والی دولت ہے، کبھی ضائع ہونے والی چیز نہیں ہے۔ یہ ہے علم کی فضیلت میرے دوستوں اور بزرگوں۔ وان المال يفنى عن قریب، اور مال یہ ہے کہ ان قریب فنا ہو جائے گا، دولت ان قریب ختم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے جو دولت دے دیا ہے، جو سربت جائیداد اور جو چیزیں قائم کر کے یہ چلی گئی ہے، رہتی دنیا تک اسے یاد کی جائے گا، کیونکہ ایک عالم دین جب اپنے علم کے ذریعے سے دوسروں کو راہ دکھاتا ہے، ان کے علم کی روشنی میں دوسرے جب راہنما ہو جائے
कामयाब हो सकते हैं। सुभान अल्लाह। दोस्तों वक्त की किल्लत है, मैं एक बात बता देता हूँ, क्योंकि कुरान की आयत मैंने तिलावत किया है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया की तकलीफ फरमाई। काहे के लिए? क्यों? अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि आजमाए कि तुम में का कौन है जिसने आखिरत के लिए, सामान्य आखिरत के लिए क्या तैयारियां की है, उसने क्या पेश किया है उसने रब की बारगाह में। इसी से मुफ्ती साहब एक उलमा फरमाते हैं, उमैर बिन साद एक शख्स का नाम था जो बाबा के नाम से याद किया जाता है, जो उलमा के ज़माने में, उस जमाने में। और आज भी देखते होइएगा कब्रिस्तानों में, कब्रिस्तान की जमीन बिक्री होती है, कब्रिस्तान बनाते हैं लोग और कब्र को फरोख्त करते हैं। 1000 2000 शहरों में ऐसा होता है जहाँ जमीन की किल्लत होती है, जहाँ कसरत से लोग पाए जाते हैं, और कब्रिस्तान की जमीन बहुत कम होती है। लाश को लाया, दफना दिया, और मान ऐसे केमिकल के सामान है डाल करके उससे गला बचा दिया। तो उस जमाने की बात है, एक बाबा थे, वो बाबा कब्र खुदा करते थे और उस कब्र की बिक्री होती थी। एक दिन की बात है, उमैर बिन साद उनका नाम कहा जाता है। उस गांव की आबादी में रहने वाला एक शख्स, पढ़ा लिखा, अनपढ़ गवार हमारे और आपके इस जमाने में जो होते हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों पर अनपढ़ गवार का ऐसा कर्जा हो जाता है मुफ्ती साहब कि पढ़े लिखे लोगों को सर छुपा कर चलना पड़ता है। उस जमाने की बात है। उस बाबा ने उमैर बिन साद के पास पहुंचकर पूछा, भाई तुम तो कब्रिस्तान में रहते हो, कब्रें बनाते हो और फरोख्त करते हो, कोई अजीब चीज ऐसी तुम्हारी नजर से गुजरी है जो हैरत में डाल देने वाली है? कहा हाँ, एक मतलब का वाकया है कि मैं कब्र खोद रहा था, कब्र बना रहा था, एक कब्र मैंने तैयार किया, दूसरी कब्र जब मैंने तैयार करने के लिए इरादा किया तो थोड़ी सी जमीन से आग के शोले का झोंका महसूस किया मैंने, और जब तीसरी कब्र तैयार करने के लिए मैंने सोचा तो इतना जबरदस्त आग की तपिश आई, ऐसे शोले मेरे तरफ लपके कि लगा कि मेरा बदन झुलस कर रह जाएगा। एक सायादार दरख्त के नीचे मैं जाकर बैठ गया और उसके नीचे हवाएं खाने लगा। सोचा कि कुछ देर आराम कर लेता हूँ, फिर कब्र तैयार करने जाऊंगा। मेरे दोस्तों को शख्स बताता है कि मैंने क्या देखा, पहली कब्र जब मैं खोद रहा था तो दो आदमी का नुज़ूल हुआ, दो शख्स इंसानी सूरत में आसमान की तरफ से जमीन की तरफ आए और एक सिरहाने और एक पैखाने खड़े हो गए। सिरहाने वालों ने कहा पैखाने वालों से, लिखो। कहा क्या लिखो? कहा लिख दो 12 मील पूरा, 12 मील पश्चिम, 12 मील उत्तर, 12 मील दक्षिण, यानी इस 12 मील के अंदर में इसके कब्र को कुशादा किया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरी कब्र जब मैं तैयार कर रहा था, फिर वो दोनों शख्स हाजिर हो गए। फिर कहा लिखो जो मैं कहता हूँ। इसने लिखना शुरू किया। कहा क्या लिखो? कहा ताहते नजर, यानी जहां तक निगाह जाए वहां तक इसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाए। अल्लाह। तीसरी कब्र के पास जब मैं पहुंचा तो तपिश में मुझे ऐसा झंझोड़ा कि लगा कि मेरा बदन झुलस के रह जाएगा। मेरे दोस्तों, मैं दूर हट गया, फिर कोशिश किया, फिर दूर हटा, फिर कोशिश किया। बार बार कोशिश करने के बाद जब मैं तीसरी कब्र को तैयार किया तो वही दोनों शख्स फिर हाजिर आ गए और कहा लिखो। कहा क्या लिखो? ऐसे बताया, अंगूठे और शहादत के उंगली के बीच, यानी क्या मतलब? इसके कब्र को इसी के बीच में रखा जाएगा। इतनी ही जगह उसमें होगी मेरे दोस्तों। वो उमैर बिन साद बताते हैं कि मैंने देखा इसी दरमियान में एक लाश लेकर लोग आ रहे थे और सिर्फ कितने थे? कितने थे? 4 आदमी, जो चारों अपने कांधे पर उस लाश को खटोला को रखे हुए आए। आने के बाद जो हुआ सो हुआ, बातें हुई,
पूछा कि भाई इतने कम तादाद में लोग लाश के साथ सिर चारा की क्या गांव में आबादी में कोई आदमी नहीं, आबादी में लोग नहीं थे किसके जनाजा में शरीक हो जाए? कहा ये अजनबी मुसाफिर का जनाजा है, कोई नहीं है इसके जान पहचान का, इलाके का कोई नहीं है, अजनबी है, मुसाफिर है। मौत हुई, हम लोगों ने हेल्प किया, चंदा करके पैसा वसूल करके कफन दफन का इंतजाम किया और कब्रिस्तान लेकर हाजिर आ गया। उस उमर बिन साद बाबा कहते हैं कि जब मैंने सुना कि पैसा इकट्ठा करके कफन दफन का इंतजाम किया गया तो मैंने कब्र खोदने की जो उजरत है मैंने वो भी माफ कर दिया। सुनिएगा, मैंने माफ कर दिया। कहा कफन दफन हो गया। फिर कुछ देर के बाद दूसरी लाश लोग लेकर आ रहे हैं, उसमें 5 आदमी थे। कितने थे? 5 आदमी, 4 कांधे पर और एक साथ साथ। पूछा दोस्त क्या बात है, अजब हाल है, अभी अभी जो लाश लेकर आए लोग 4 आदमी के साथ आए, अभी 5 आदमी के साथ आए, आखिर ऐसा क्यों, वजह क्या है? कहा क्या बताऊं, बहुत गरीब आदमी था, मुफलिस, तलाश, बेबस, बेकस, बेसहारा, कोई नहीं है इसका। इसलिए हम लोगों ने गरीबों की मदद की और मदद के घर से अपने तरफ से मिला करके और कफन दफन के लिए इंतजाम किया और कब्रिस्तान लेकर आ गया। कहा चलो इसका भी मैंने माफ कर दिया, मैं इससे उजरत नहीं लूंगा। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी लाश लेकर जब लोग आए, बड़ी भीड़ भाड़, गाड़ियों के हुजूम, बड़े बड़े लोग, रईस, कबीर, अमीर, दौलतमंद, जायदाद के मालिक, सरवत के मालिक, बड़े बड़े लोग, इतनी भीड़ की चारों तरफ से लोग ही लोग नजर आ रहे थे। अल्लाह अकबर। उमर बिन साद कहते हैं कि मैंने पूछा किया ये किसका जनाजा है कि जिसमें इतनी तादाद में लोग आए हैं, बड़े बड़े लोग आए हैं, अमीर और कबीर लोग दिखाई दे रहे हैं, गाड़ी से लोग आए हैं, अजब है, क्या हो गया है? तो क्या पूछता है जानते हैं? कहने वाले कहते हैं यार ये किसी सौदागर की बीवी का जनाजा है, किसी सौदागर की बीवी का जनाजा है, जिसके बारे में फरिश्तों ने बताया था कि इसकी कब्र बस अंगूठे और शहादत की उंगली के बीच में कुशादा है। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि अमाल तैयार करो, नेकियां करो, वरना तुम्हें कब्र में इस तरह से अजाब दिया जाएगा कि इधर की तीसरी की तरफ कर दिया जाएगा। इसीलिए कहा गया है। तो पूछा यार ये अमीर और कबीर है और ये दौलतमंद है, सरवत वाले हैं, जायदाद वाले हैं? कहा है तो दौलत वाले, अमीर और कबीर, सरवत और जायदाद वाले, मगर इसके पास दिल नहीं था। जब कोई साहब इसके दरवाजे पर जाता था उसे फटकार कर भगा दिया जाता था। किसी मदरसा के लिए, दीनी खिदमत के लिए जब आदमी इसके दरवाजे पर पहुंचते थे उसे एक कौड़ी नहीं दिया करता था। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसके कब्र में इतनी जगह रखी है कि इधर के पिछले उधर, और वो गरीब अजनबी था, वो मिस्किन था, करनाश था, दिल रखता था, हर एक के दिल को खुश करता था। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ताहते नजर इसके कब्र को कुशादा कर दो, इसलिए कि इसने मजहब और मिल्लत की खिदमत किया है। मेरे दोस्तों हमारे आखिरत तैयार करो, अय्युकुम अहसनु अमला, कौन है तुमने का जिसने आखिरत के लिए अपना सामान तैयार किया है? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए कहा जाता है नमाज पढ़ो, रोजे की पाबंदी करो, दीनी खिदमत में हिस्सा लो, मदरसा और मस्जिद बनाने में खूब हिस्सा लो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, यही वो चीजें हैं जो आखिरत में काम आने वाली है, कब्र में काम आने वाली चीजें हैं, हश्र में काम आने वाली चीजें हैं। दिल से दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मौला अज़्ज़ व जल्ल हमें आपको सबको इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। कहिए आमीन आमीन आमीन। और हज़रत अल्लामा अब्दुल रहीम साहब की वालिदा मुहतरमा मक़बूला मरहुमा की मग़फ़िरत और बख्शिश फरमाए। आमीन बजाए सय्यदुल मुरसलीन। मेरे दोस्तों वक्त की किल्लत है, बहुत सारे लोग बाकी हैं, रात ज़्यादा हो गई, आप लोग भी बिल्कुल मुरझाए हुए से नजर आते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर कभी मौका मिलेगा सुनने सुनाने का, हयात बाकी रही तो सामने जरूर हाजिर होगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।